हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। Fifth point is the most important here. Explain effect of the First World War on the industry in Russia. There is an important question. Note down your copy. Explain effect of the First World War on the industries Russia. Here take of 5 points is an important point for the exam view. And let us the first point here. At the beginning of 12th century in Russia, most industry was owned by the industrialists. You understand first point? At the beginning of 12th century in Russia, most industry was owned by industrialists. And second point here, the government supervised to the large factory to ensure a minimum wage, and the time of working is over. That is important. The government is a supervised a large factory to ensure the minimum wage. The minimum wage and the time of the working hour is long. I have already discussion for the question here. In the craft unit is the third point. The craft unit, a small workshop, sometime like a working hour where of 15 hours compared with the 10 to 12 hours in the big factories. There is an important point here. Note down your copy. In a craft unit is a small workers workshop. A small workshop, but sometime like a working over here is a 15 years. It is impossible. There is compared with the 10 or 12 hours in the big factories. The important point for the industry in the First World War, the Russia, and the worker is were divided into a different social group, and they were also divided by the skill. It is an important point. Worker were divided into different social group, and there also is a division by skill only. And the here fifth point is important here. Women consist of 30%, 31% of factory labor force. Women consist of 31% of factory labor force. The wage of a female worker was less than a male worker. There is a most important point here. The women consist of the 31% of the factory and the labor force. The wage of the female worker was less than to the male worker. And the sixth point here, some worker is formed association to the help other worker in a time of a hardship. Is important. Some workers force associations to be help other workers in the time of the hardship. हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिफ्थ क्वेश्चन के अनुसार आया। देखिए, पांचवा क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जो है साफ समझ में आ जाएगा कि ये अपनी इम्पोर्टेंटता जो है स्वयं ही बता रहा है कि रूस में उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का व्याख्या करना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी इसके कारण जो है इंडस्ट्री यानी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, युद्ध होता है तो जनरल सी बात है कि युद्ध का प्रभाव जो है हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो समाज हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कहीं भी हो। युद्ध के कारण जो है हर एक क्षेत्र में जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और कहते हैं इससे जो है युद्ध से आम जीवन जो होती है त्राही त्राही कर लेती है। इसलिए जो है कभी भी ये बात हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर ये बात कहता है कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए। युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए और युद्ध को जितना हो सके टाल देना ही कहते मानव भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत हम आप देखते हैं कि रूस में उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का हमने यहाँ पर चर्चा करना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि रूस में 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश उद्योग जो था उद्योगपति के स्वामित्व में थे। तो इसमें कोई जर्नल बात नहीं, हमने पीछे भी कुछ आंसर हमने पढ़ा था कि बहुत से उद्योग जो थे उद्योगपतियों के स्वामित्व में थे।
20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश उद्योग जो थे बड़े बड़े उद्योगपति स्वयं उसके स्वामी हुआ करते थे और जैसे मर्जी से जो था लेबरिंग करवाते थे लेबरों से। कहते हैं कि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो न्यूनतम मजदूरी थी और काम के घंटे सुनिश्चित करने के सरकार ने बड़े कारखानों का जो है प्रक्षेपण किया था। कहते हैं उस समय जो था न्यूनतम मजदूरी हुआ करता था, लोगों को जीवन भी यापन नहीं होता था और काम के जो है घंटे बेशक सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो है छोटे छोटे उद्योगों पर जो है उद्योगपतियों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सका। अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बड़े कारखानों में 10 घंटे की तुलना में शिल्प इकाइयों के छोटी कार्यशालाओं में कभी कभी काम के घंटे जैसे 15 घंटे होते थे। अब इस बात को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर जो था जहाँ कारखाने का 10 या 12 घंटे करवाना चाहिए मजदूर से मजदूरी, लेकिन वहाँ पर जो थे उद्योगपति सब जो थे वो 15-16 घंटा जो है लोगों से काम करवाते थे, लेकिन तनख्वाह उसको उससे भी कम देते थे। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो है विश्व युद्ध का लोगों पर कितना प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं उद्योगपतियों ने तो युद्ध को जो है अपना कारखाना बना लिया कि इससे जो है लोग भूखे मर रहे हैं, जितना हो सके हम काम निकलवा लें, इससे उनका उद्योग जो है फलेगा फूलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आती है। अगर हम करें चौथी पॉइंट को तो ये साफ कर देता है कि श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजित किया गया था। देखिए जो श्रमिक होते थे उनको भी समाज के विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया था, यानी समूह में विभाजित कर दिया था, डिवाइड कर दिया था और उन्हें जो कौशल द्वारा भी विभाजित किया गया था। देखिए 2 तो कंडीशनों से इनको विभाजित किया गया था। एक तो क्या किया गया था, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। दूसरी बात थी कि उनके स्किल का मतलब होता है दोस्तों उनकी कौशल, उनकी जितना कौशल होता है, जितना उनको सक्षम है कोई भी कार्य करने का, इस बेस पे भी उन्होंने क्या किया था, उसको अलग कर दिया था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। और 5वां पॉइंट तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये किसी क्वेश्चन का भी हो सकता है कि पहले विश्व युद्ध में औरतों की क्या दशा थी। देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इसके अंतर्गत बन सकता है, 5वें आंसर के अंतर्गत। तो देखा जाए तो उस समय जो है महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत करते हैं, कहते हैं महिलाओं में कारखानों में जो है श्रम बल 31% शामिल था, यानी औरतें जो थी श्रम में देखा जाए तो 31% जो है महिलाओं की हुआ करती थी, यानी 31% जो है महिलाएं जो है फैक्ट्रियों में काम किया करती थी। लेकिन देखा जाए तो महिलाओं की वहाँ पर दशा बहुत ही दयनीय थी। अब पूछिएगा कि दयनीय क्यों थी, तो इसका कारण है दोस्तों कि वो जो है जितने भी कार्य करते थे सब पुरुष के अंतर्गत ही करते थे, यानी पुरुषों के सामान्य ही कार्य करते थे, लेकिन उनका जो वेज होता था, तनख्वाह होता था, पुरुषों से भी कम होता था। यानी जितना कहते हैं काम तो वो पुरुषों जैसा ही ले रहे थे, लेकिन जो सैलरी दे रहे थे वो बहुत ही कम था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर औरतों का शोषण हो रहा था। यानी देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के समय समकालीन टाइम में कहते हैं कि बिल्कुल ही औरतों की दशा बहुत ही बेकार थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है एक नया क्वेश्चन को जन्म दे देता है। अगर एग्जाम में औरतों के बारे में आए तो अब इसी को बेस बना के जो है आंसर आगे बढ़ा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यदि हम 6वें पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ श्रमिकों ने कठिनाई के समय में अन्य श्रमिकों की सहायता के लिए संघों का गठन किया। यानी कुछ श्रमिकों ने कठिनाई के समय अन्य श्रमिकों की जो है एक संघ बनाया, जिससे कि जो है मजदूर वर्ग का जो है शोषण जो हो रहा था उस पर कंट्रोल पाया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके 6 पॉइंट कहते हैं एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप 6 पॉइंट लिखते हो तो एग्जामिनर आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। और ये पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध के जो है उद्योग पर क्या प्रभाव देखने को मिला। दोस्तों क्वेश्चन आपने दिमाग में रखना है, तभी जो है आप आंसर जो है बेखूबी लिख पाओगे। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो याद कर लेते हैं बट उनको क्वेश्चन ही नहीं पता होता है। ये मैं जानता हूँ और बहुत ही गलत बात है। आपको क्वेश्चन को भी समझ के दिमाग में रखना है। क्वेश्चन याद रहेगा, समझ रहेगी, तभी जो एग्जाम में आप कर सकते हो। और क्वेश्चन को बहुत ही शांत समय में जो है समझने की कोशिश करो, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बना दे। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, त्रिपाण सेंटर के साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने साथ जो है दूसरे की भी भलाई होना जरूरी है।
तभी जो है कहते हैं कभी कभी दूसरे की भलाई कर देने में ही हमारे लिए फ़ायदे का सबब बन जाता है। इसलिए सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और तिरपान सेंटर हमेशा एग्ज़ाम के टाइम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जो है ज़रूर जो है डालेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा व्यतीत हो।